students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with class 10th chapter, mensuration. Now, in the previous lectures, we have already covered various solid figures like cube, cuboid, sphere, hollow sphere, hemisphere, then right circular cylinder, right circular cone. We have also done combination of solids, frustum of cone. तो इन सब के हमने फॉर्मूलेस देखे थे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरियाज के, and we did lots of subjective questions based on them. In this particular lecture, we are going to do objective questions based on this chapter. Alright? तो जितने भी previous formulas हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए and your calculation part should be strong. You should be quick in doing the calculations. क्योंकि objective type questions हैं, so you need to race against time. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे प्लीज गो थ्रू देम सो दैट यू कैन रिवाइज द थ्योरी पार्ट एंड प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू टैकल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. But before we begin this lecture, don't forget to subscribe to the channel so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures and you can avail full benefits of it. So without any delay, let us begin the lecture. और हम जैसे करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो look at the first question on your screen. A first question here given is that two cubes each of 15 centimeter each are joined end to end. दो क्यूब्स हमने ज्वाइन किए हैं end to end. Edge is 15 centimeter. You know that in a cube length, breadth, height are all same. तो आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब देखो, जब आप दो क्यूब्स ज्वाइन करते हो तो रिजल्टिंग फिगर एक क्यूबॉइड बनेगी. सो यू हैव टू विजुअलाइज इट, मेक द फिगर एंड देन सी व्हाट विल बी द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब. सो देखते हैं हम फिगर को. तो आप देखो, इसमें फिगर हमारी कुछ ऐसे आएगी. जैसे आपके ये दो क्यूब्स हैं, ईच ऑफ एज 15 सेंटीमीटर, इनको हमने ज्वाइन किया है और इनको एज टू एज ज्वाइन करके बनाया है क्यूबॉइड. नाउ यू कैन नोटिस इन द फिगर, जो लेंथ है आपकी वो 15 प्लस 15 कितनी हो जाएगी, 30. ब्रेड्थ आपकी वही रहेगी 15 सेंटीमीटर्स और हाइट भी वही रहेगी 15. So only the difference will be in the length now because it is increased. So let us write. So we have now length of cube L will be equal to how much? 30 centimeters. We will have breadth equal to 15 centimeters and height of the cuboid will be 15 centimeters. तो ये जो नया cuboid है, इसकी हमारी dimensions ये हो गई. And we have to obtain the surface area. तो यहाँ पे लिखते हैं surface area of cuboid. All right? तो surface area of cuboid का formula देखो क्या होता है. It has got 6 surfaces and surface area is given by 2 times length into breadth plus breadth into height plus length into height. Let us put the values now. So we have 2 times 30 into 15. Then we have breadth into height, which is 15 multiplied by 15, and then we have length into height, which is 30 multiplied by 15. अब देखो, सॉल्विंग पार्ट क्विक करने के लिए what you can do is always take whatever that is common. अब आप देखो 15 स्क्वायर हर एक में कॉमन है, तो बाहर 2 है. लेट अस टेक 15 का स्क्वायर कॉमन. वी आर लेफ्ट विद, इसमें बचेगा 2. नेक्स्ट टर्म विल बी लेफ्ट विद 1, देन अगेन 2. तो 2 plus 2 plus 1 5, 5 2s are 10, तो 10 into 15 का स्क्वायर which is 225. So therefore answer is 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड which is obtained after joining two cubes. So this was the question. Let us see now. You can see the option correct is D, 2250 centimeter square. तो यहाँ पे D option correct है. So I hope this question is clear to you. Let's move on to the next one. Question number 2. Read the question carefully. Second question is that a cube is inscribed in a sphere. अब देखो, जब हम ये कहते हैं कि क्यूब स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है,
इट मीन्स जो भी आपके क्यूब के वर्टिसेस हैं दे आर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर. ऑलराइट, आपको दिया है कि अगर डायगनल ऑफ क्यूब इज 28 सेंटीमीटर्स, क्यूब का डायगनल अगर 28 है तो रेडियस ऑफ स्फेयर हमें बताना है. तो सबसे पहले आपको फिगर बनानी है जिसमें आप एक क्यूब को इंस्क्राइब करोगे स्फेयर के अंदर. अब अगर आप फिगर बनाओगे, जैसे मैंने कहा था कि सारी एजेस स्फेयर को टच करेंगी, तो फिगर कुछ ऐसी बनेगी. ये जितने भी वर्टिसेस होंगे क्यूब के, दे विल बी लाइंग ऑन द स्फेयर. अब आप यहां पे देखो कि जैसे हम किसी डायगनल की बात करते हैं क्यूब की, तो लेट मी टेक वन डायगनल. सपोज आई हैव दिस एज डायगनल ए बी. तो इसकी लेंथ आपको दी है 28 सेंटीमीटर्स, तो ए बी इज 28 सेंटीमीटर्स. हमें चाहिए रेडियस ऑफ द स्फेयर. अब आप नोटिस करो ए बी इज डायमीटर ऑफ स्फेयर. इज इट ऑल राइट? तो ये होगा हमारा डायमीटर ऑफ स्फेयर. तो जो रेडियस होगा इट विल बी हाफ ऑफ इट. सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सिर्फ आपने ये विजुलाइज करना है कि फिगर कैसी बनेगी. वंस यू आर क्लियर अबाउट द फिगर, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू डू. तो इसका मतलब डायमीटर हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर्स. ये हमारा ए बी. This is the diameter as you can see. So this is the diameter which is also the diagonal. तो radius will be half of it. जैसे ये अगर आपका center है तो half will be the radius. So that means we can say that R will be equal to D by 2. That means 28 by 2 which is 14 centimeters. Alright. So radius of sphere will be 14 centimeters which we had to obtain. So as you can see in the question, we have B option correct. So in this question we have B option correct. So question, as I said, is quite simple. Let's move on to the next one. Question number 3 पढ़ते हैं. Question is that a sphere of diameter 6 centimeters is dropped in a right circular cylindrical vessel partly filled with water. मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर में थोड़ा पानी भरा हुआ है जिसमें हमने एक स्फेयर डाला है. आगे क्वेश्चन ये है, द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलिंड्रिकल वेसल. तो आपको एक तो स्फेयर का डायमीटर दिया है और एक सिलिंड्रिकल वेसल का डायमीटर दिया है. ऑब्वियसली अगर आप वेसल के अंदर स्फेयर डाल रहे हो तो स्फेयर का डायमीटर छोटा होगा और वेसल का डायमीटर बड़ा होगा. तो सबसे पहले देखो फिगर कैसी बनेगी. फिगर वुड बी समवट लाइक दिस, जिसमें हमारे पास पहले कुछ पानी मान लो यहां तक भरा हुआ था. हमने जब ये ब्लू स्फेयर डाला है तो पानी का लेवल इंक्रीज होके यहां चला गया. तो आपको ये बताना है बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज. तो मान लो वाटर का लेवल इतना राइज हुआ है, तो ये हमारा वो वाटर है जो राइज हुआ है स्फेयर को डालने के बाद. ठीक है, जिसको हमने शेड किया है. तो ये आपने हाइट निकालनी है. अब देखो ये जो पानी है दैट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लो इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर. ठीक है, ये जो सिलेंडर का हमारा रेडियस है सपोज दैट इज कैपिटल आर, और स्फेयर का रेडियस हम ले लेते हैं हमारा स्मॉल आर. सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, सपोज इट इज इक्वल टू स्मॉल आर. अब देखो जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही ये येलो पोर्शन का वॉल्यूम होगा, क्योंकि स्फेयर के डालने से पानी का वॉल्यूम यहां से यहां चला गया. इज इट ऑल राइट? तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. उसके लिए आपको स्फेयर का डायमीटर 6 दिया है, तो लेट अस राइट ओवर हियर. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्फेयर, its radius r will be 6 upon 2, that is equal to 3 centimeters. So let us obtain now volume of sphere. तो volume of sphere होता है हमारा 4 upon 3 pi r cube. तो let us put the value of r. तो it is 4 upon 3 pi into 3 का cube. एक 3 कैंसल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा, it is equal to 36 pi centimeter cube. Alright, let us call it as V1. तो V1 is 36 pi centimeter cube, that is sphere of the volume of the sphere.
अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड। यहां से लेकर यहां तक पानी गया है, तो लेट अस नाउ ऑब्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड। तो लेट अस राइट वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड। अब देखो जो ये रेज्ड वाटर है, एज आई सेड इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर की शेप में है पानी। अब देखो इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो सिलेंड्रिकल वेसल का जो डायमीटर है, एज यू कैन सी द डायमीटर इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस हाफ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स और हाइट तो निकालनी है। तो लेट मी पुट ओवर हेयर। तो वी हैव दिस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स और हाइट h है विच वी वांट टू ऑब्टेन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ऑलराइट, कैपिटल आर आएगा। तो आर की वैल्यू पुट कर दो, इट इज 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, दैट इज इट इज 36 पाई एच और यूनिट्स होंगे हमारे सेंटीमीटर क्यूब। लेट अस कॉल इट एज V2, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड। सो 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। अब V1 और V2 में देखो क्या रिलेशन होगा। जो हमारा वॉल्यूम रेज्ड है, एज यू कैन सी दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दैट मीन्स वी हैव हेयर V1 is equal to V2, which implies we get 36 pi is equal to 36 pi multiplied by h. So as you can see 36 और pi दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे. This implies we are getting h to be equal to 1 सेंटीमीटर्स. सब चीजें सेंटीमीटर्स में है तो हाइट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में. तो दैट इज द हाइट टू विच द वाटर इज रेज्ड, 1 सेंटीमीटर. तो लेट अस चेक द ऑप्शंस हियर नाउ. तो एज यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 3 1 सेंटीमीटर इज ए, so we have A option correct, right? So this was question number 3. Let's move on to the next question. So look at question number 4 now. Fourth question here given is that two solid hemisphere of the same base radius r, base radius दोनों का r है, they are joined together along their bases, then the curved surface area of new solid. तो curved surface area आपने बताना है नए solid का. अब दो हेमिस्फेयर्स हैं. आपको पता है हेमिस्फेयर में एक सर्कुलर पार्ट होता है और एक फ्लैट पार्ट होता है विच इज अ सर्कल. तो फ्लैट पार्ट जो है उसको बेस कहते हैं. तो बेस के अलोंग हमने उनको ज्वाइन किया है. तो देखो हमारी फिगर कैसी आएगी. नाउ लुक हियर, फिगर वुड बी लाइक दिस. ये हमारे पास दो हेमिस्फेयर्स हैं. ये उनकी देखो फ्लैट सरफेसेस हैं जिनको हमने ज्वाइन किया है. These are called as the bases. तो इनको ज्वाइन किया तो हमारे पास बन गया ये कंप्लीट स्फीयर, एज यू कैन सी. तो बेसिस को ज्वाइन करके दिस इज द कंप्लीट स्फीयर विच इज फॉर्म्ड. अब ऑब्वियसली जो इनका रेडियस होगा, अगर इनका रेडियस स्मॉल r है, बिकॉज यू आर गिवन दे हैव सेम बेस रेडियस r, तो जो आपका स्फीयर बना है उसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा. तो आपने ये जो इसका सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी सरफेस एरिया ऑफ दीज टू हेमिस्फेयर्स. कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का लेके वो ऐड करना है. तो लेट अस राइट नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑलराइट, ऑफ न्यू सॉलिड विच इज स्फीयर. तो ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी इक्वल टू सिंपली स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर. या ये भी कह सकते हो ये शेडेड पार्ट आप ऐड करोगे, इस शेडेड पार्ट का एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो दिस इज ऑल्सो 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 2 पाई आर स्क्वायर. तो इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया है तो सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. सो यू कैन सी इट इज ए ऑप्शन. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट. इज इट ओके? दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो इतने स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन हियर. वी आर गिवन क्वेश्चन नंबर 5 एज अ सर्कुलर टेंट सिलिंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 meters. तो पहले वो सिलिंड्रिकल है टू अ हाइट ऑफ 4 meters, देन कोनिकल अबव इट.
तो इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर्स, तो जो टेंट है उसका डायमीटर अगर आपको दिया है 105 मीटर्स एंड स्लांट हाइट इज 40 मीटर्स, देन टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। कैनवस मतलब कपड़ा जिससे हमने वो टेंट बनाया है। तो टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। तो फिगर सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी। तो फिगर हेयर वुड बी लाइक दिस, इस टाइप से हमारा कोनिकल टेंट आएगा। अब आप देखो सिलेंड्रिकल हाइट है 4 मीटर्स, तो ऑब्जर्व करो जो हमारी ये हाइट है दिस विल बी 4 मीटर्स, लेट अस डिनोटेड बाय कैपिटल एच। तो ये हाइट यहां से लेकर यहां तक, ये आपका बेस रेडियस हो गया सिलेंडर का। तो लेट मी डिनोट दिस हाइट बाय कैपिटल एच विच इज गिवन टू बी 4 मीटर्स। फिर हम लेते हैं हाइट ऑफ कोन। ये आपकी जो सीधी हाइट है कोन की वो आएगी और स्लांट हाइट विल बी दिस मच, ये होगी आपकी स्लांट हाइट। लुक, दिस विल बी द स्लांट हाइट ऑफ द कोन विच इज एल, और एल आपको दिया है कितना 40 मीटर्स, दिस इज 40 मीटर्स। फिर आपको कहा है डायमीटर है 105 मीटर्स, तो ये अगर देखो रेडियस है, ये कोन का भी रेडियस होगा और हमारा सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा। तो वी आर गिवन दिस स्मॉल आर टू बी इक्वल टू डायमीटर इज 105, तो 105 अपॉन 2 मीटर्स। वी हैव कैपिटल एच एज 4 मीटर्स and slant height of cone L as 40 meters. We need to obtain area of canvas required. तो कैनवस का मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का और कोन का। अब देखो सिलेंडर में नीचे बेस पे कपड़ा नहीं होता, टेंट इज ऑन द ग्राउंड, सो देयर इज नो क्लॉथ बिलो द टेंट, यू हैव द कर्व पार्ट, और टॉप पे हमारा कोन है उसका भी लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेट अस नाउ राइट area of canvas required which we want to obtain. So area of canvas required will be equal to curved surface area of cylinder. All right, CSA means curved surface area, वो cylinder का लोगे, plus we will take curved surface area of cone. Now the formula for curved surface area of cylinder is 2 pi r into capital H because capital H is the height of cylindrical part. फिर जो कोनिकल पार्ट है इसका बेस रेडियस r है और स्लांट हाइट l है, तो यू नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर l. तो पुट करते हैं वैल्यूज, लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ। दिस इज इक्वल टू नाउ 2 इंटू 22/7, इसमें पहले आप कॉमन भी ले सकते हो, देखो इजी रहेगा क्वेश्चन करने के लिए। दोनों टर्म्स में देखो हमारे पास क्या कॉमन है, एज यू कैन सी हेयर वी हैव पाई आर कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विथ 2h plus l. नाउ वी पुट द वैल्यूज, पाई इज 22/7, स्मॉल r इज हाउ मच 105/2, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन 1 यूनिट। तो हमारे पास r भी देखो मीटर्स में है, कैपिटल h इज ऑल्सो इन मीटर्स एंड l इज ऑल्सो इन meters. So multiplied by 100, sorry यहाँ पे 105 अपॉन कितना आएगा 2 आएगा, so this is upon 2 multiplied by 2 times capital H is 4 तो 8 हो गया और plus L is 40. alright, तो यहाँ पे अब हम इसको करते हैं solve. Now notice one thing, ये 7 से cancel हो जाएगा, it will come out to be 15 and this will cancel with 2, we will have 11. So therefore this is equal to 11 into 15 multiplied by 48. तो 11 into 15 into 48 on solving will give you 7920 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स होगा, क्योंकि डायमेंशंस के यूनिट्स मीटर्स में थे, तो एरिया इज 7920 meters. So this much is the area of canvas which is required for making of this tent. So as you can see, that is D option, 7920 meters square. That means here D option is correct, right? So combination of solids का ये question है. Let's see the next one now. Look at now question number 6. Sixth question here is that radii of ends of a bucket, they are 5 centimeter and 15 centimeters और height है 24 centimeters.
तो आपने बताना है सरफेस एरिया ऑफ बकेट। अब देखो जो बकेट होती है, ऑलराइट, दैट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो उसमें, एंड रिमेंबर, बकेट इज ओपन एट द टॉप, ऑलराइट, तभी तो उसमें आप पानी डालोगे। तो सबसे पहले हम फिगर देखेंगे, तो फिगर आपकी आएगी कुछ ऐसे। दिस इज द बकेट विच इज फ्रस्टम ऑफ कोन। लोअर रेडियस, हमने लोअर पे जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस है r1, अपर वाले सर्कुलर पार्ट का रेडियस r2, वर्टिकल हाइट बकेट की h है और ये स्लांट हाइट हमारी कितनी है, l। वी नीड टू ऑब्टेन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में आपको l चाहिए होगा पहले। अब देखो एंड्स ऑफ बकेट है 5 और 15, तो 5 छोटे वाला होगा, तो यहां पे हम लिखते हैं कि वी आर गिवन r1 टू बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट बड़ा है, r2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। देन दिस हाइट का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, तो h is given to be 24 centimeters. As I said, for surface area, we will require the slant height L. तो सबसे पहले हम L निकालते हैं। Its formula is under root of R2 minus R1 का whole square, alright, and plus we have H square. तो R2 minus R1 will be 15 minus 5 10. तो we have 10 square plus 24 का square, because h is 24 here. Now L will be equal to 100 plus 576, which is equal to under root of 676, which is 26. That means we are getting L as 26 centimeters. तो अब देखो आपके पास R1 की वैल्यू है, we have R2, हमारे पास h था जिसको यूज करके हमने निकाल लिया स्लांट हाइट। Now let us obtain जो हमें निकालना था सरफेस एरिया ऑफ बकेट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बकेट है वो टॉप से ओपन होती है बेटा, तो इस पार्ट का एरिया नहीं लेना, नीचे वाले सर्कल का एरिया लेना है और ये कर्व पार्ट का एरिया लेना है। तो लेट अस राइट नाउ सरफेस एरिया ऑफ बकेट, ऑलराइट, दिस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस। तो कर्व पार्ट का एरिया जो होता है आपका, दैट इज गिवन बाय पाई टाइम्स r1 प्लस r2 इंटू एल, और लोअर बेस पे रेडियस r1 है तो सर्कल का एरिया होगा पाई r1 स्क्वायर। यू कैन टेक हेयर पाई कॉमन, तो for solving it what we can do is we can take pi common here. तो यहां पे हम देखो pi को कॉमन लेते हैं, we are left with r1 plus r2 multiplied by l and plus r1 square. So this is equal to now 22 by 7 r1 plus r2. अब देखो यहां पे r1 आपका 5 है, r2 15 है, तो ऐड करके 20 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 26, और r1 5 था उसका स्क्वायर हो गया 25। तो ये बेशक आंसर शायद आपको पाई की टर्म्स में दिया है ना, तो एक काम करते हैं, इसको पाई ही रहने देते हैं। ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई इटसेल्फ। नाउ दिस इज इक्वल टू पाई इनटू 520 and plus we have 25. So that means we get surface area of bucket as 545 pi and units will be centimeter square. So this is the answer. Let us check which option here would be correct. So we have 5, how much? 45 centimeter square. तो आप यहाँ पे ये complete question as you can see on the screen. So A option will be correct, 545 pi centimeter square. तो A option आ गई correct. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Now let us see how to look at question number 7. So 7th question here is, let us read, the diameter of a metallic sphere is 6 centimeters. तो metallic sphere का diameter 6 है। It is melted and drawn into a wire of diameter of cross section 0.2 centimeters. Then the length of the wire is, अब देखो स्फेयर है जिसका डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2 as 3 सेंटीमीटर्स।
नाउ इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर। अब देखो वायर आपकी कुछ ऐसी होगी, इज इट ओके? नाउ दैट मीन्स इट विल टेक द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो स्फेयर को हमने एक सिलेंडर में रिकास्ट किया है, जिसमें आपको कहा है डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन ये वाला सर्कुलर पार्ट होता है, ये देखो, दिस सर्कुलर पार्ट विल बी द क्रॉस सेक्शन। तो इसका आपको डायमीटर इज गिवन टू बी 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा। तो ये जो वायर है आपने उसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम फिगर देखें, स्फेयर को हमने कन्वर्ट किया है सिलेंडर में, तो आपके पास फिगर कुछ ऐसे आएगी। अब यहां पे अगर हम स्फेयर का जैसे रेडियस r ले रहे हैं, दैट इज गिवन, डायमीटर इज 6, तो स्फेयर की अगर आप बात करते हो तो इसका जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि उसी को हमने रिकास्ट किया है मेल्ट करके वायर में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर V1 से डिनोट कर सकते हैं, दैट वुड बी 4/3 पाई r क्यूब। तो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब। एक 3 कैंसिल करो, तो दिस इंप्लाइज वी हैव V1 इक्वल टू हाउ मच? लुक हियर, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब हम बात करते हैं किसकी? वायर की, विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वायर विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम, ये जो इसका वॉल्यूम है और स्फेयर का वॉल्यूम है वो सेम होगा। मान लो वायर की जो लेंथ है दैट इज h, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है दैट d इज गिवन टू बी 0.2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस अगर हम r डैश बोलें तो इट विल बी d/2, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स इट इज 1/10 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, तो ये हमारा वायर का रेडियस हो गया। तो यहां पे लिखते हैं r डैश इज 1/10 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ इज इक्वल टू सपोज h centimeters, which is to be obtained. Now let us take volume of cylinder या volume of wire. तो this will be equal to pi r dash square multiplied by h. तो keep pi as it is, r dash is 1/10, उसका square into h. That means it is equal to pi into h/100 centimeter cube. तो let us denote it by V2. तो V2 is pi h/100 centimeter cube. Now you can see since sphere is melted and recast into wire, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो that means we will have V1 equal to V2. तो let us equate the two because volume is same. This implies we get 36 pi is equal to pi into h/100. एक बात याद रखो, जब भी आपको दो वॉल्यूम्स इक्वेट करने हैं ना, तो पाई एज इट इज रहने दो, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाता है। अगर आपके पास जो दो वॉल्यूम्स हैं वो कोन, सिलेंडर या स्फेयर या हेमिस्फेयर में से कुछ है, क्योंकि उसमें पाई आता है। तो यहां पे हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, पाई इज गेटिंग कैंसल्ड। सो फ्रॉम हेयर वी गेट h इज इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर्स। तो मीटर्स में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 100, तो लेंथ जो है हमारी वायर की वो कितनी आ गई? 36 मीटर्स। सो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 36 मीटर्स इज सी, तो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो इस क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी दी हुई है। द बॉटम ऑफ अ ग्लास हैज अ हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन। अब देखो ग्लास सिलेंडर की शेप में है, तो नीचे हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेस्ड है। आपने ग्लास देखा होगा, तो अंदर का थोड़ा सा पार्ट एलिवेटेड होता है। आपको कहा है इफ द ग्लास इज फिल्ड विद ऑरेंज जूस, द क्वांटिटी ऑफ जूस विच अ पर्सन विल गेट।
अब देखो जूस कितना मिलेगा, वो ये इतना मिलेगा, यहां पे हमारा ये जूस है, ऑलराइट, इस पोर्शन में है, तो ये जूस की क्वांटिटी आपको बतानी है, मतलब इस शेडेड पार्ट का आपने वॉल्यूम निकालना है। डायमेंशंस आपको क्वेश्चन में ही दी हुई हैं फिगर में, कि हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हम इसको h से डिनोट करते हैं तो h इज गिवन बाय 15 सेंटीमीटर्स, ऑलराइट। आपको डायमीटर 6 दिया है पूरा, तो रेडियस विल बी हाफ, ये हमारा r हो जाएगा, तो r विल बी इक्वल टू 6/2, दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ जूस होगा वो क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस करोगे, क्योंकि उतना रेस्ड पोर्शन था, यहां पे जूस नहीं था। तो लेट अस राइट नाउ वॉल्यूम ऑफ जूस या क्वांटिटी ऑफ जूस, ऑलराइट। सो क्वांटिटी ऑफ जूस इन ग्लास will be equal to volume of cylinder, all right, minus volume of hemisphere। तो इन दोनों का वॉल्यूम हमें आपस में माइनस करना होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगेन फॉर सॉल्विंग वी टेक व्हाटएवर दैट इज कॉमन, और फिर वैल्यूज पुट करेंगे। आप नोटिस करो इनमें पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 3b चाहे कॉमन ले लो, सो वी आर लेफ्ट विद 3h minus 2 times r. Now put the values. So we have pi as 22/7, all right. Then we have r square. r is देखो 3 सेंटीमीटर्स, तो इसका स्क्वायर हो गया 9। फिर आपके पास क्या है, डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई करना है 3h, 15 है h हमारा, तो 3 टाइम्स 15 विल बी 15 3s are 45 माइनस 2 टाइम्स r, दैट इज 6। तो ऑब्जर्व करो ये वाला 3 हम कैंसिल कर देते हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 66/7 मल्टीप्लाइड बाय 45 माइनस 6 विच इज 39, ऑलराइट। तो हमारे पास आएगा यहां पे 66/7 इनटू दिस। अब अच्छा आंसर आपको देखो पाई की टर्म्स में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, लेट अस कीप दिस एज पाई ओनली। तो ऑप्शंस को एक बार जरूर देख लो, सिंस दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इसको हम रहने देते हैं पाई। तो वी हैव 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 39, इज इट ऑल राइट, विच इज 117 पाई, और यूनिट्स हमारे क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई बिकॉज यू आर गिवन ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ पाई। सो लेट अस चेक द राइट ऑप्शन। तो हमारा आंसर आया है 117 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट यू कैन सी इज बी ऑप्शन। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question here is a hollow cube, ठीक है, of internal h 22 centimeters is filled with spherical marbles जिनका diameter दिया है 0.5 centimeters, and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled। अब जैसे आप बॉक्स में मार्बल्स डालते हो, तो क्योंकि मार्बल्स स्फेरिकल होते हैं तो कुछ पार्ट बच जाएगा, बिल्कुल एंड टू एंड पैक होके क्यूब में नहीं आएंगे। तो 1/8 जो स्पेस है वो अनफिल्ड रह जाती है, मतलब फिल कितनी होती है, 7/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब आपको बताना है नंबर ऑफ मार्बल्स दैट द क्यूब कैन अकोमोडेट, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम क्यूब लेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे से स्फेरिकल मार्बल का वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूब का क्योंकि 1/8 स्पेस फिल हो रहा है, तो उसमें कितनी स्पेस फिल हो रही है वो निकालोगे, और एज्यूम कर लोगे कि n मार्बल्स हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज फिल्ड, ऑलराइट। तो सबसे पहले देखो, अगर हम फिगर की बात करें तो हमारे पास फिगर कुछ ऐसी होगी, ऑलराइट, कि हमारे पास ये क्यूबिकल बॉक्स है जिसके अंदर ये स्फेरिकल मार्बल्स हैं। अब अगर हम क्यूब की डायमेंशन लेते हैं, मान लो a,
तो आपको इंटरनल एज कितनी दी है 22 सेंटीमीटर्स, तो A इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर्स. तो लेट अस ऑब्टेन फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. So volume of cube will be equal to, you know that A cube मतलब 22 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो 1/8 जो स्पेस है वो आपकी अनफिल्ड रहती है. सो अगर हम इस वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं तो दिस इज V. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज फिल्ड विद मार्बल्स, विच इज filled with marbles, all right, वो देखो कितना हो जाएगा. This will be equal to, now वॉल्यूम में से 1/8 ऑफ V माइनस करोगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 1/8 स्पेस जो है वो अनफिल्ड रहती है, तो मतलब 7/8 ऑफ V. तो ये हो गया 7/8. 8 को देखो लिख सकते हो 2 का क्यूब, और यहां पे वॉल्यूम है 22 का क्यूब विच इज 11 इंटू 2 का. तो 2 क्यूब कैंसिल कर दो, इट इज 7 इंटू 11 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारे पास आ गया वो वॉल्यूम बेटा जो कि क्यूब का फिल रहता है. ऑलराइट, अब हम आते हैं उसमें जो हमने डाले हैं स्फेरिकल मार्बल्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्फेरिकल मार्बल्स. तो उनका एक स्फेरिकल मार्बल का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमें उसका रेडियस लेना पड़ेगा. आपको देखो क्वेश्चन में दिया है कि स्फेरिकल मार्बल जो है उसका डायमीटर जो है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर्स. तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ इट, दैट मींस 0.5 अपॉन 2 मतलब 1/4 सेंटीमीटर्स. नाउ लेट अस ऑब्टेन वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल. सो वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल लेट अस डिनोट बाय V2. ऑल राइट, this will be equal to 4/3 pi r cube. That is the volume of a sphere. Let's put the value of r. So V2 is equal to 4/3 pi into 4 का cube, 1/4 का cube. Alright, so it is 1/4 का cube. तो एक 4 कैंसिल कर दो. We have pi upon 4 4s are 16, 16 3s are 48, इतना सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल. अब हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज n मार्बल्स आर पुट, या मान लो क्यूब कैन अकोमोडेट n मार्बल्स. तो लेट द क्यूब कैन अकोमोडेट हाउ मेनी मार्बल्स? n मार्बल्स. तो आप नोटिस करो जो n मार्बल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? n इंटू V2, क्योंकि एक मार्बल का वॉल्यूम हमने V2 लिया है. तो n इंटू V2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ऑक्यूपाइड, वो हमारा आया था 7 इंटू 11 का क्यूब. तो इट इज 7 इंटू 11 क्यूब. तो हमें n निकालना है. तो दिस इंप्लाइज वी हैव n इक्वल टू 7 इंटू 11 का क्यूब डिवाइडेड बाय V2. V2 is pi upon 48. Now it means this is equal to n 7 इंटू 11 का क्यूब, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय ये 48 देखो ऊपर आएगा, और फिर pi is 22/7 ये हो जाएगा. तो एक 11 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव 7 इंटू 11 का स्क्वायर, और एक 2 यहां पे देखो कैंसिल होगा. दिस इज 11, दिस इज 24, और एक ये 11 हमने यहां पे कैंसिल किया है, तो वी आर लेफ्ट विद 11 स्क्वायर. सो वी हैव 7 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 24 इंटू 7. ऑल राइट, ये हमारे पास आएगा. दिस ऑन सॉल्विंग विल गिव यू 142296. इज इट ऑल राइट? इतने हमारे पास स्फेरिकल मार्बल्स क्यूब के अंदर आ सकते हैं. तो n की वैल्यू हमारी आ गई. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो ये आप सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करके. 142296. लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 9. तो इसमें 142296 इज ए ऑप्शन. तो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट. इज इट ओके? तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 10. ऑलराइट, तो यहां पे देखो 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले इसको ध्यान से. क्वेश्चन है अ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक. तो आइसक्रीम ब्रिक्स आपने देखी है, तो वो क्यूब की फॉर्म में है. एज इज 22 centimeters. It is to be distributed among some children by filling the ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeters up to its brim. Brim मतलब पूरा ऊपर तक लेवल तक भरना है. The number of children who will get the ice cream cones that you have to obtain. अब जो पूरी ब्रिक है आइसक्रीम की, उसका जो वॉल्यूम है वो आपने कोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो अगर हमारे पास n चिल्ड्रन है तो उतने ही कोन्स होंगे. हम ये मान के चल रहे हैं 1 child is given 1 आइसक्रीम कोन, नॉट मोर देन दैट. ऑलराइट, तो जितने आइसक्रीम कोन्स बनेंगे उतने ही चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो मान लो n आइसक्रीम कोन्स हैं, तो आप एक कोन का वॉल्यूम निकाल के n से मल्टीप्लाई करोगे. इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक विच इज इन द शेप ऑफ क्यूब. ओके, तो अब अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर वुड बी समवट लाइक दिस. ठीक है, ये हमारी फिगर बनेगी. अब ये जो आइसक्रीम है ये हमारी क्यूब की फॉर्म में है, जिसकी मान लो हमें एज दी है a. तो वी आर गिवन इट टू बी 22 सेंटीमीटर्स. तो पहले हम क्यूब की ही बात करते हैं, मतलब आइसक्रीम ब्रिक की बात कर रहे हैं, विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब. तो आपको क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक बोला है. इसकी एज ए यू आर गिवन एज 22 सेंटीमीटर्स. तो इसका जो वॉल्यूम है, मान लो हम V1 से डिनोट कर रहे हैं, इट विल बी ए क्यूब. दैट मीन्स 22 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो ये आइसक्रीम हमने डाली है इन कोन्स में. तो यू कैन सी दिस इज द कोन जिसको ऊपर पूरा लेवल तक फिल करना है. अब आप नोटिस करो यहां पे मान लो ये है रेडियस ऑफ द बेस और ये हो गई हमारी उसकी हाइट. सपोज रेडियस ऑफ बेस इज r और ये जो हाइट है दैट इज h. तो ये हमें दिया हुआ है, देखो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर्स. सो स्मॉल r हेयर इज गिवन टू बी 2 सेंटीमीटर्स and height of cone is 7 centimeters. So let us obtain volume of one ice cream cone over here. तो volume of one ice cream cone, let us denote it by V2. तो cone का volume is 1/3 pi r square h. तो let us put the values. So this will be equal to now 1/3 into 22 by 7. r is 2, तो 2 का स्क्वायर into h which is 7. तो ये अगर हम कैंसिल करें तो we have 7 cancelling out. This means it is equal to now, ये देखो 88 divided by 3 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया. तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं let there be n आइसक्रीम कोन्स. तो यहां पे लिखते हैं let there be n आइसक्रीम कोन्स. तो एक कोन का वॉल्यूम है V2, तो n टाइम्स V2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विच इज V1. ऑलराइट, तो पुट करो वैल्यूज और हम निकालेंगे फिर n. तो यहां पे एक तरह से n विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2. सो n इज इक्वल टू V1 इज 22 का क्यूब, दैट मीन्स 22 इंटू 22 इंटू 22. V2 इज 88 अपॉन 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा. इज इट ऑल राइट? अब देखो इसको कैंसिल करते हैं. 22 4 ये 2 से करो 11, दिस इज 2. ये 2 से करो दिस इज 11. तो now let us obtain n. So we have n equal to 121 into 3 which is equal to 363. तो जितने आइसक्रीम कोन्स थे उतने ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे. सो देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जिनको आइसक्रीम्स मिली हैं, दे आर 363 चिल्ड्रन. ऑलराइट, तो लेट अस चेक व्हिच ऑप्शन हियर वुड बी करेक्ट. I hope the question is clear to you.
cubical brick of ice cream को we have distributed into cones. तो 363 is C. So that means in this question we have C option correct, right? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at now 11th question. Question is that a reservoir is in the shape of frustum of a right circular cone. It is 8 meters across at the top, 4 meters across at the bottom. Across का मतलब diameter. Alright. If it is 6 meters deep, then its capacity means volume. आप यूनिट से भी हिंट ले सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर्स है, दैट मीन्स वी हैव टू ऑब्टेन द वॉल्यूम. तो रिजर्वॉयर आपका फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन की शेप में है. तो वो फिगर आप बनाओगे तो फिगर वुड बी समवट लाइक दिस, जिसमें हम एक काम करते हैं. जो बेस का रेडियस है, ये जो सर्कुलर पार्ट आपका देखो बेस में आएगा, जस्ट अ मोमेंट, दिस विल बी द सर्कुलर पार्ट ऑफ बेस. ऑलराइट, तो इसका जो रेडियस होगा R1, लेट अस डिनोटेड बाय R1. और टॉप पे ये जो सर्कुलर पार्ट है, सपोज इट्स रेडियस इज R2. ठीक है, ये R2 हो गया. तो उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी जो आपको हाइट दी है, देखो वो कितनी है, 6 मीटर्स. सो दिस इज द हाइट दैट इज गिवन टू बी 6 मीटर्स. ये h हो गया, तो h इज 6 मीटर्स. लेट अस राइट ऑल द वैल्यूज. तो R1 जो है that is how much? It is now 8 meters across top, 4 meters bottom. तो पूरा डायमीटर जो है 4 meters है, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ, that is 2 meters. फिर टॉप का आपका it is across 8 meters, तो रेडियस R2 will be 8/2, that is 4 meters. Alright? ये एक तरह से अंदर वाले पार्ट के हम रेडियस की बात कर रहे हैं जिसमें पानी है. फिर उसके बाद हाइट आपको दी है कितनी, 6 meters. Now we have, let us obtain volume of the reservoir, which is in the shape of bucket. So volume of reservoir, this will be equal to, क्या फ्रस्टम ऑफ कोन का देखो वॉल्यूम होता है 1/3 pi h multiplied by R1 square plus R1 R2 plus R2 का स्क्वायर. इंश्योर करो कि सब में यूनिट सेम है. तो बस अब वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू h इज हाउ मच, 6. फिर R1 is 2, उसका स्क्वायर विल बी 4. R1 R2 4 2s are 8. फिर R2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. यहां पे देखो ये कैंसल हो गया, 3 2s are 6. So we have this equal to 44/7 into we have 28. तो 7 से कैंसिल करो, 7 4s are. That means it is coming out to be 176 meter cube. Alright. So this is the volume of the reservoir which is in the shape of frustum of a cone. So let us check the options. So as you can see here we have A option correct. 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई. तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करना है. यूनिट सारे आपको सेम दिए हैं, बस इतना ध्यान में रखना 8 मीटर्स अक्रॉस और 4 मीटर्स अक्रॉस का मतलब आपको डायमीटर्स दिए हैं. टॉप का डायमीटर आपको गिवन है 8 मीटर्स और बॉटम का डायमीटर इज गिवन टू बी 4 मीटर्स. तो रेडियाई उनके हाफ हो जाएंगे. करेक्ट. Let's see the next question now. Look at now question number 12 and let's see how to do it. So question number 12 here is, a cone is cut into 2 parts. There is a cone, alright, which we have cut into 2 parts by a horizontal plane which is passing through the midpoint of its axis. The ratio of, किसकी ratio चाहिए? Volume of the upper part of the cone and the original cone. तो हमने कोन लिया है, उसकी जो एक्सिस होती है वहां से उसके मिड पॉइंट से एक प्लेन से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो रेशो चाहिए अपर पार्ट ऑफ कोन और ओरिजिनल कोन का. अब देखो जो फिगर है इट वुड बी समवट लाइक दिस. ठीक है, फिगर आपकी कुछ ऐसे आएगी. ये हमारा ओरिजिनल कोन है, आप नोटिस करो दिस विल बी द एक्सिस. ऑलराइट,
तो ये हमारी एक्सिस है। तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास ये है जहां से हमने इसको कट किया है। ऑलराइट, तो अगर कोन की ओरिजिनल हाइट देखो, अगर हम ले रहे हैं, दिस विल बी द ओरिजिनल हाइट से h। अगर ये हाइट आपकी h है, तो ये हाफ से कट किया है, तो ये जो ऊपर वाला देखो कोन आया है, इसकी जो हाइट है, ये अपर पार्ट ऑफ कोन है, तो इट्स हाइट विल बी इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसकी हाइट कैपिटल H ले लो और छोटे वाले की हम ले लेते हैं स्मॉल h। सपोज इट इज कैपिटल H एंड दिस कैन बी टेकन एज स्मॉल h। तो जो स्मॉल h है वो आपका कितना है, कैपिटल H अपॉन 2। दिस मीन्स वी हैव h अपॉन कैपिटल H एज हाउ मच, 1 अपॉन 2। तो ये रेशो हमारी 1/2 आ गई, क्योंकि ये हाफ था हमारा। अब देखो, अगर हम ये मान लें कि आपका जो ओरिजिनल रेडियस है ओरिजिनल कोन का, राइट, दिस इज द ओरिजिनल कोन, मान लो इसका रेडियस है आपका कैपिटल R, और एज्यूम कर लेते हैं इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r। दिस इज द ओरिजिनल कोन, ऑलराइट, और ये है हमारा अपर पार्ट ऑफ कोन। दिस इज अपर पार्ट ऑफ कोन। इन्हीं के वॉल्यूम्स की रेशो चाहिए। ये सपोज आपने V1 लेना है, क्योंकि पहले अपर पार्ट ऑफ कोन है, फिर ओरिजिनल कोन है, इसका वॉल्यूम हम लेंगे V2। अब देखो, हमें जैसे हाइट्स की रेशो तो मिल गई ना, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द रेडियाई। आप नोटिस करो, जो ये वाला ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, ऑलराइट, और ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं। किन ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं, देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ऑलराइट, और ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर ट्राइंगल्स मतलब सिमिलर हैं, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि एक तो इनका ये वाला देखो एंगल सेम हो जाएगा, ये वाला एंगल सेम है, और एक हमारा ये एंगल 90 डिग्री है। तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो कैपिटल H अपॉन स्मॉल h विल बी इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R विल बी स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। अब स्मॉल h अपॉन कैपिटल H 1/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशोज हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। अब जैसे मैंने कहा, ये अपर पार्ट ऑफ वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम की रेशो आपको चाहिए, तो लेट अस नाउ ऑब्टेन हियर V1 अपॉन V2। एज आई सेड हियर कि V1 है अपर वाले पार्ट के वॉल्यूम का, अपर वाले पार्ट ऑफ कोन का वॉल्यूम, और ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम है V2। सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ V1 विल बी पाई R स्क्वायर H, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल और हाइट स्मॉल h ली है, और ओरिजिनल वॉल्यूम हमने लेना है पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H। एज यू कैन सी पाई विल गेट कैंसल्ड, ऑलराइट। तो दिस रेशो कैन बी रिटन एज, नाउ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन कैपिटल H। अब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 1/2 है, और h upon h is also 1/2. तो let us put it over here. This is 1/2 का square into 1/2. That means it is 1 upon 8. So therefore required ratio V1 is to V2 is coming out to be 1 is to 8. Alright. V1 है upper part of cone जो कटने के बाद आया था. V2 is the original cone. तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. So as you can see 1 is to 8 is D. So in this question we have D option correct. So main thing is that these two triangles will be similar. तो sides हमारी क्या हो जाएंगी, proportional. Okay. Let's see the next question now. Now look at question number 13th. 13th question is that volume of largest right circular cone that can be carved out from a cube of edge 4.2 centimeters. एक सबसे पहले आप क्यूब लोगे 4.2 सेंटीमीटर्स एच का क्यूब है, तो ऑल द डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ हाइट आर सेम। उसमें से सबसे बड़ा राइट सर्कुलर कोन आप जो कार्व कर सकते हो
उसका आपको वॉल्यूम चाहिए, मतलब वॉल्यूम कोन का चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर आपकी कुछ ऐसे आएगी। देखो, ये हमारे पास क्यूब है, मान लो जिसकी एज है सपोज ए, तो एज ए इज गिवन टू बी हाउ मच, इट इज 4.2 सेंटीमीटर्स। अब देखो जो लार्जेस्ट कोन है वो हमारा ये कोन है, दिस इज द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ दिस क्यूब। तो इस कोन की अगर आप नोटिस करो हाइट, तो ये हाइट जो है इट विल बी सेम एज द एज ऑफ द क्यूब। देखो, ये अगर आपके पास ए है तो हाइट भी तो ए होएगी ना, तो जो हाइट है आपकी कोन की दैट विल बी ए, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, विच यू कैन से इज 42/10, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो कि हाइट ऑफ कोन इज कमिंग आउट टू बी 21/5 सेंटीमीटर्स। फिर देखो जो कोन का रेडियस है हमारा, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन। तो ये पूरी जो एज है उसका हाफ होगा ना, पूरी एज आपकी ए है, तो रेडियस विल बी इक्वल टू ए बाय 2, मतलब 4.2/2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये हो गया 21/10। सो वी हैव आर इक्वल टू 21/10 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास आ गई किसकी डायमेंशंस, कोन की, जो हमने कार्व आउट किया है। तो इसी का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो लेट अस राइट नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी, एज यू नो, द फॉर्मूला 1/3 pi r square into h. So it can be written as 1/3 into 22/7. R square will be 21/10 into 21/10 and h is 21/5. So let us cancel whatever that can be. तो एक तो देखो 3 7s are 21 कैंसल हो गया. So this is equal to now how much? 22. ये हमारे पास इक्वल आ रहा है अब 22 multiplied by 21 into 21 is 441 and divided by 500. This is to be calculated. This will come out to be 19.4 and units will be centimeter cube. तो ये लार्जेस्ट कोन है जो हम कार्व आउट कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम आया है 19.4 सेंटीमीटर क्यूब. ऑलराइट, तो एज यू कैन सी इट विल बी डी ऑप्शन. तो लार्जेस्ट कोन के लिए ध्यान में रखो, हाइट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द कोन एंड रेडियस आर ये जो था हमारा, दिस विल बी इक्वल टू ए का हाफ. ए पूरा है तो रेडियस उसका हाफ होगा. राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. 14th question here is the rain water from a roof of dimensions. रूफ जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपको रूफ की दी हुई है. तो रेन वाटर जो उसके ऊपर इकट्ठा हुआ है, इट ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल जिसका डायमीटर ऑफ बेस है 2 मीटर्स और हाइट कितनी है 3.5 मीटर्स. तो ये डायमीटर दिया है और हाइट दी है सिलिंड्रिकल वेसल की. फिर इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलिंड्रिकल वेसल, मतलब सिलिंड्रिकल वेसल पूरा फिल हो जाता है, तो रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स. तो रेनफॉल जो गिरी है उसकी हाइट एक तरह से आपने बतानी है. अब देखो जो फिगर बनेगी इट वुड बी समवट लाइक दिस, इजंट इट. ये रूफ के ऊपर आपका पानी है जो कलेक्ट हो रहा है एक सिलिंड्रिकल वेसल में. अब देखो रूफ जो है वो आपको जो गिवन है वो लेंथ, जैसे ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और जो पानी है उसकी मान लो जो ये पानी अंदर इकट्ठा हुआ है उसकी जो हाइट है वो h है. तो अगर हम पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्यूबॉइड की शेप में हो जाएगा रूफ के ऊपर जो इकट्ठा हुआ है. तो उसके लिए सबसे पहले ये अज्यूम कर लो, क्योंकि सब कुछ आपको मीटर्स में दिया है, तो लेट h मीटर्स बी द हाइट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, ये हो जाएगा. आपको सेंटीमीटर्स में निकालना है, वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज अभी हमें सारे यूनिट्स देखो किस में दिए हैं, मीटर्स में दिए हुए हैं.
तो पानी जो कलेक्ट हुआ है दैट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ आपको 22 और 20 दी है, तो लेट अस राइट नाउ। तो लेंथ इज इक्वल टू 22 मीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर्स और हाइट हमने ली है h। तो देयरफॉर V1 लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर collected on roof, all right, collected on roof. Now it is in the shape of cuboid, so it will be L into B into H. That means this is equal to now V1 हमारे पास आ गया 22 into 20 into H, that is equal to 440 H meter cube. This is V1. अब आप देखो यही वाला पानी जो है वो सिलिंड्रिकल वेसल में कलेक्ट हो रहा है, ये जो पानी था वो सिलिंड्रिकल वेसल में कलेक्ट हो रहा है। एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा सिलिंड्रिकल वेसल है, देखो उसका जो रेडियस है सपोज इट इज स्मॉल r और इसकी जो हाइट है मान लो वो है हमारी h है। तो सिलिंड्रिकल वेसल का डायमीटर आपको 2 मीटर्स दिया है, तो मतलब r विल बी इक्वल टू 1 मीटर्स और इसकी हाइट है 3.5 मतलब 7/2 मीटर्स। तो लेट अस टेक द वॉल्यूम और कहा है पूरा ऊपर तक फिल हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो लेट अस टेक नाउ। तो अब हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल वेसल की, ऑलराइट, सिलिंड्रिकल वेसल। तो इसका जो रेडियस है दैट इज 1 मीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 7/2 मीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल, this will be equal to volume of cylinder which is pi r square into h. तो पुट करो, this is 22/7 into 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7/2। क्या कैंसिल हो गया, देखो 7 is cancelled, 2 is cancelled, so this is equal to now 11 meter cube, all right। अब जो पानी था वही हमारा कलेक्ट हुआ है ना यहाँ पे, isn't it? तो इसका मतलब ये अगर V2 है तो V1 V2 क्या होंगे, सेम होंगे। जो रूफ के ऊपर पानी था वही जाके सिलिंड्रिकल वेसल में कलेक्ट हुआ है। तो लेट अस इक्वेट द टू, वी हैव V1 इक्वल टू V2। दिस इंप्लाइज वी हैव 440 टाइम्स H इज इक्वल टू 11। दोनों के यूनिट्स क्या थे, मीटर क्यूब ही थे। तो अगर अब हम H निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 11/440। 11 से कैंसिल करो तो इट इज इक्वल टू, दैट मीन्स H इज 1/40 मीटर्स। लेट अस कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100/40 सेंटीमीटर्स विच इज 5/2 सेंटीमीटर्स। तो अगर डेसिमल में निकालना है तो देयरफॉर H विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी हाइट है किसकी, रेनफॉल की। तो इतनी बारिश हमारी हुई है, इतना पानी इकट्ठा हुआ था रूफ टॉप पे जो कि जाकर नीचे सिलिंड्रिकल वेसल में कलेक्ट हुआ है, ऑलराइट। तो वी ऑल शुड डू रेन हार्वेस्टिंग इफ पॉसिबल, दैट सेव्स वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में 2.5, देखो रेनफॉल आपको चाहिए थी इन सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स में 2.5 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट, राइट। Now look at one last question, question number 15. 15th question is that a well with inner diameter 6 meters is dug 22 meters deep. तो एक वेल हमने जमीन को खोद के डिग किया है जिसका इंटरनल डायमीटर 6 मीटर्स है और डीप कितना है वो 22 मीटर्स। फिर द सॉइल टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly all around it to a width of 5 meters to form an embankment. Embankment मतलब आसपास जो बाउंड्री बनाते हैं वेल के। The height of the embankment आपने निकालनी है। अब देखो हमने एक तो गड्ढा खोद के पहले वेल बनाया है, उसकी जो मिट्टी निकली है उससे हमने वेल के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनाई है। तो आपकी जो फिगर होगी
दैट वुड बी समवट लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास ये फिगर आएगी। आप नोटिस करो, जैसे ये वेल हमने खोदा है, इसकी जो मिट्टी निकली है इसको हम एम्बैंकमेंट कहते हैं, जो कि हॉलो सिलेंडर की शेप में होता है, तो वेल के आसपास इसको बनाते हैं। अब एक चीज हम नोटिस करते हैं यहाँ पे कि जो वेल का यहाँ पे इंटरनल रेडियस था, मान लो स्मॉल आर, तो वही इस वेल का भी इंटरनल रेडियस होगा, दैट इज स्मॉल आर। मान लो इस वेल का जो आउटर रेडियस है यहाँ पे, ऑलराइट, ये जो आउटर रेडियस होगा, ये देखो ये वाला, इसको लेट मी टेक इट विद रेड ओनली सो दैट इट इज विजिबल। तो ये जो आउटर रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और ये जो है इतना पार्ट दैट इज द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट विच इज गिवन टू बी 5 मीटर्स। अब ये जो है एम्बैंकमेंट दैट इज इन द शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर, और जो आपने मिट्टी निकाली है इस वेल से दैट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब जो इसकी हाइट है, देखो कितनी डीप तक हमने डक किया है। ये जो हाइट आपकी अगर हम कैपिटल H मान लें दैट इज गिवन टू बी 22 मीटर्स, और R कितना है 6 मीटर, नहीं 6/2, क्योंकि ये डायमीटर था। तो जो वॉल्यूम आपका मिट्टी का होगा, मतलब इस सिलेंडर का होगा, वही वॉल्यूम इस हॉलो सिलेंडर का होगा जो ये हमने बाहर बाउंड्री बनाई है। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ व्हाट, दिस सॉइल विच इज टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर। तो उसके लिए ये वाले सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसकी आपको हाइट दी है 22 मीटर्स, और रेडियस इसका है 6/2, दैट इज 3 मीटर्स ही दिया है, यस 3 मीटर्स। तो लेट अस टेक V1 विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ऑलराइट। तो ये एक सिलेंडर की शेप में है, आप देख सकते हो। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। तो V1 इज इक्वल टू 20 पाई, पाई की फॉर्म में अभी चाहे रहने दो, ये हो गया आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 22। तो दैट मीन्स इट इज 9 इंटू 22 इंटू पाई मीटर क्यूब। दिस इज V1। अब यही वॉल्यूम इस हॉलो सिलेंडर का होगा। तो अब हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें देखो स्मॉल r आपका कितना है, that is same as radius of this well which is dug out, that is 3 meters। आपको इसकी width दी थी 5, तो कैपिटल R हो जाएगा R plus 5, that means कैपिटल R will be 5 meters। और आपको बताना है height of embankment, तो ये हम assume कर लेते हैं this is equal to small h, तो ये height आपको निकालनी है। तो let me take now volume of this hollow cylinder। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विच इज इन द शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर V2 से डिनोट करते हैं, इट इज गिवन बाय पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। तो दिस इज इक्वल टू पाई, कैपिटल R है देखो 5, ऑलराइट, और स्मॉल r इज 3 मीटर्स, सब कुछ मीटर्स में है। तो दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू H। तो ये निकाल लो कितना आ गया। सो वी हैव V2 इक्वल टू, दिस इज 25, 25 माइनस 9 दैट इज 16 इंटू पाई इंटू H मीटर क्यूब, ऑलराइट, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, ये दिस विल बी इक्वल टू, नाउ यहां पे 8 आएगा, सॉरी, दिस R विल बी 8 है ना, R प्लस 5 कर रहे हैं ना, R 3 था, दिस विल बी बेटा 8। तो लेट मी मेक दिस करेक्शन, ये 8 हो गया, तो यहां पे हमारे पास आएगा 8 का स्क्वायर। तो लेट मी करेक्ट दिस, तो वी हैव 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 माइनस 9 विल बी हाउ मच, 55, ऑलराइट, ये हो जाएगा। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट है वही वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है, तो लेट अस इक्वेट द टू। तो नाउ लेट अस इक्वेट V1 एंड V2। V1 इज इक्वल टू V2, so 9 into 22 pi will be equal to 55 into pi into H। तो एक तो देखो पाई कैंसल हो गया यहाँ पे,
All right, so this implies h will be equal to 9 into 22 divided by 55 और यूनिट्स क्या हैं, मीटर्स हैं। अब इसमें आप नोटिस करो 11 टू ज़ा और ये है 11 5 ज़ा, तो दैट मीन्स h is equal to 18 upon 5, all right, which is equal to 3.6 meters, all right, so this is equal to 3.6 meters. So this is the height of the embankment, all right. Let us check which option here would be correct. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी आई है, 3.6 मीटर्स, विच इज सी ऑप्शन। तो ये हमने मिट्टी निकाली है, तो इसका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट सेम होगा। इनर रेडियस इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा, विड्थ 5 है तो 3 + 5 कैपिटल आर विल बी 8 और इसकी हाइट स्मॉल h आपने निकालनी है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। So in this lecture you have seen we have done objective questions on the chapter mensuration, जिसमें हमने तकरीबन सभी की बात करी है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ अ कोन. So we have tried to cover each and every type of solid in these objective questions. तो मेन थिंग इज प्रैक्टिस, फिगर ठीक बननी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए और फिर आपने यूनिट्स भी ठीक से मैच करने हैं एंड देन यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो जब भी प्रैक्टिस करो नेवर यूज कैलकुलेटर, क्योंकि तभी आपकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस सो दैट यू आर very thorough in this chapter. So keep enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.